Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Hello and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, listeners will also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2371-7106, and 2371-7117. And listeners who will call us, who are going to be calling us from outside Delhi will have to prefix the Delhi STD code 011 before these numbers. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज सोमवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं सम्मिलित, पूछ सकते हैं हमसे अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में आपको जानकारी नहीं दे सकते। हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 23314444, 23717106 या फिर 23717117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों की वरिष्ठ विश्लेषक डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Manoj. Domestic stocks log modest gains amid mixed global cues. Sensex closes above 54,400. Nifty settles above 16,250. And Brent crude prices tumble more than 4% amid concern about demand. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मिले जुले रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 54,400 और निफ्टी 16,250 के स्तर से ऊपर उठकर बंद हुए और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत मांग घटने की आशंका से 4% से अधिक लुढ़की। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार आज मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 54,400 और निफ्टी 16,250 के स्तर से ऊपर उठ गए। सीमित दायरे में हुए कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 125 अंक यानी 0.23% की बढ़त लेकर 54,403 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 20 अंक यानी 0.12% बढ़कर 16,258 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजार पर ध्यान दें तो छोटी और मझौली कंपनियों के शेयरों की बिकवाली तेज रही। इनका प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में कमजोर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 1.07% की गिरावट हुई। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.72% नीचे आ गया। The Sensex and the Nifty today logged modest gains. Both equity indices added amid mixed global cues. The Sensex climbed above 54,400 and the Nifty surged above 16,250 level. Trading in a narrow range, the BSE Sensex gained 125 points or 0.23% to close at 54,403. The NSE Nifty also appreciated 20 points or 0.12% to settle at 16,258. However, in the broader market at BSE, the mid-cap plunged 1.07% and the small-cap index declined 0.72%, underperforming the Sensex. In the Sensex pack, shares of 19 companies gained while 11 fell. Mahindra & Mahindra was top gainer as it surged 2.2%, followed by Axis Bank, which gained 1.9%. Tech Mahindra and Bajaj Finserv both climbed 1.7% and IndusInd Bank rose 1.3%. On the other hand, Bharti Airtel tumbled 1.6% and Tata Steel fell 1.2%. NTPC slipped 0.8% and Larsen & Toubro declined 0.7%.
In sectoral indices, 15 out of 19 sectors fell. Metals sector lost the most as it plunged 1.5%, followed by telecom and oil and gas, which declined 1.3%. Utilities sector stocks slipped 1.1%. On the other side, BankX gained 0.6% and IT climbed 0.4%. Tech added 0.3% and finance ended 0.2% up. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,243 companies gained, while 2,100 fell. Shares of 133 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 11 पैसे कमजोर होकर 74 रुपए 27 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक 0.02% की गिरावट से 92.78 पर आ गया। हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर आ चुके हैं। इस बीच हम आप सबका स्वागत करते हैं और सबसे पहले आमंत्रित करना चाहेंगे जयपुर से जितेंद्र जी को। जितेंद्र जी, लगता है हमारा संपर्क टूट गया। मुंबई से हमारे साथ श्रोता हैं अभी। मुंबई से हमारे साथ श्रोता पंकज जी लाइन पर बने हुए हैं। पंकज, गुड इवनिंग जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल पूछें। I would just like to know about future market prospects as of now, because everyone talks about it as a bubble nowadays and market will have a major correction. And I would like to know about oil-specific sector marketing companies, like they have made quite a lot of profit, but still shares have not gone up so much about oil marketing companies. So the markets are likely to be in the territory as the economic recoveries across the world as well as in India are picking up. Also, if we look at the way the second wave of the coronavirus has been handled and the vaccination drive that is going on, they are all showing a positive territory. Besides that, about 1,900 companies are likely to announce their earning results in this week. The macroeconomic data, which would be released on Thursday, will also have an important factor. The IPOs, which are likely to be introduced, are also likely to put a positive sentiment to the market. Some listings of the IPOs are also likely to have a positive impact. The challenge which remains, or the volatility that is likely to be caused, is because of the infections that are likely to rise because of the Delta variant and the coming of the third wave, which is being predicted. Overall, a positive territory. As far as oil companies are concerned, as and when the demand picks up, their share prices will also pick up. But till the time there is uncertainty with respect to the overall economic recoveries across the world, as well as in India, which may be affected by the third wave, are there, then the oil companies will not pick up so fast in their share prices. And now we have Mr. Harish from Faridabad. Mr. Harish, welcome to the program. Please ask your question. गुड इवनिंग मैम। Good evening. मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे स्टॉक मार्केट में जैसे कोई कंपनी बोनस इशू करती है, ठीक है, तो अगर मान लो 1:1 करती है, तो उसमें क्या होता है कि स्टॉक का प्राइस ही आधा हो जाता है, ठीक है। तो मतलब जैसे बोनस इशू करती है, लेकिन उसका फायदा ही क्या हुआ? फिर हमारा मतलब स्टॉक का प्राइस ही आधा हो जाता है, तो फिर बोनस इशू करने का कोई फायदा ही नहीं है। इससे तो हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ जाती है कि हमारा टैक्स भी बढ़ जाता है, और उससे मतलब ये फायदा ही क्या हुआ हमारा? जी, बोनस इशू से आपका टैक्स नहीं बढ़ता। बोनस इशू से आपको एक शेयर मिल रहा है जो ओवरऑल आपके प्रोस्पेक्ट्स इंक्रीज करते हैं। आगे जाकर के आप उस शेयर को बेच सकते हैं, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन्स मिलेगा। कोशिश ये की जाती है कि बोनस शेयर से शेयर होल्डर्स को एक जो है इंसेंटिव दिया जाए। मार्केट में प्राइस इसलिए कम हो जाती है क्योंकि जो टोटल सप्लाई ऑफ शेयर्स है वो डबल हो जाती है, और उसके तहत वो प्राइसेस पहले गिर जाती हैं, उसके बाद कुछ समय बाद बढ़ोतरी की तरफ जाती हैं, क्योंकि एक सिग्नल इफेक्ट होता है। आइए चलें जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जितेंद्र। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल पूछें। हाँ, धन्यवाद सर। हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि अभी मार्केट तेज है, तो कौन सा सेक्टर सस्ता है अभी, और आगे क्या मार्केट तेज रहेगा, क्या अंदाजा? और दूसरा, ETF निफ्टी ETF इंडेक्स फंड
कैसा होता है ये? आप देखें तो कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में काफी अंडरवैल्यूड स्टॉक्स हैं, उनको आप पिक कर सकते हैं. He also wants to know about the ETF index funds. The exchange traded funds that are there. The exchange traded funds, there are many funds which are trading on the exchanges, in which one can invest, and right now one cannot specify which would be the undervalued, but one will have to look at the overall valuations and find that out. And the next caller online is from Mumbai, Mr. Hasmukh Dedia. Mr. Hasmukh Dedia, welcome to the program. Please ask your question. या गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा. Good evening, please. मेरा प्रश्न ये था कि फेडरल रिजर्व ने कहा था कि जब ये जॉब रोल्स डेटा जो है एवरी वीक या एवरी मंथ की जो निकालते हैं उन लोग, तो वो जिससे अच्छा करेगा तो उसके बाद में फेड जो है वो अपना करेंसी प्रिंटिंग या बॉन्ड बाइंग वगैरह वो कम करेंगे. तो क्या लगता है आपको कि कुछ नियर फ्यूचर में ये बॉन्ड बाइंग वगैरह या कम हो सकती है, या मतलब जो लिक्विडिटी का जो पुश है डॉलर्स का वो कम हो सकता है क्या? जी, फेड ने जो समय सीमा तय की है वो 2023 की है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की. उन्होंने कहा है कि वो रिव्यू करेंगे कि जो है कंडीशन अगर चेंज होती है तो वो उससे पहले भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर सकते हैं. जॉब मार्केट डेटा एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक रिवाइवल का, जो एक पॉजिटिव साइड पे रहा है यूएसए के अभी के समय पर, जो है क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरीज जो है इतनी नहीं है और ओवरऑल उतना पोटेंशियल नहीं दिखा पा रही हैं जितना दिखाना चाहिए, इसलिए अभी लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी, अकोमोडेटिव स्टैंस उनका मेंटेन रहेगा. इन्फ्लेशन जिसके बारे में वो वरिड है वो कह रहे हैं कि टेम्पररी है, इसलिए जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर भी अभी अकोमोडेटिव स्टैंस रखेंगे इकोनॉमिक रिकवरीज के लिए. आइए चलें गुरुग्राम से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर राजदीप जी, बहुत बहुत आपका स्वागत. सवाल पूछें. मेरे पास DHFL के शेयर हैं जो उनकी ट्रेडिंग स्टॉप हो गई है, तो उनका क्या होगा अभी? जी, आप उनको आउटसाइड एक्सचेंज बेच सकते हैं. ज्यादातर मैनेजमेंट को अगर आप ऑफर करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना कॉम्पिटिटिव कंपनीज भी उनके खरीद सकती हैं. आप कोई और इन्वेस्टर को भी बेच सकते हैं. ट्रेडिंग सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में तब स्टॉप हो जाती है जब लिस्टिंग खत्म हो जाती है. आप अभी भी उन्हें ट्रेड कर सकते हैं अगर चाहें तो. And now we have Mr. Rajgopal from Chennai. Mr. Rajgopal, welcome to the program. Please ask your question. Good evening, Market Mantra team. Good evening. Please. Madam, my question is regarding this MRP. Earlier also I asked, but I was not getting, reply. So I am forced to again ask regarding that. Because in my observation, I observed in most of the shop owners are selling MRP little bit lesser price. But there is wide difference between the MRP and the actual price at what they are selling. You want to MRP is the maximum retail price. It is the price which is maximum that a retailer can charge you. So anything beyond that is not legally tenable for him to charge. He can charge you a lesser price by, cutting down on his commission or on his any kind of a benefit he is receiving on that price. श्रोताओं, यहाँ पर हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र. बने रहिए हमारे साथ. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ. सिंपल है छोटे, कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ. ओ, तो ये बात है. हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया, तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया. बड़े भैया. हाँ छोटे. भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी. सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर. विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में. आइए अब चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां दक्षिण कोरिया को छोड़कर अन्य सभी प्रमुख बाजारों में लिवाली तेज रही.
चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स आज 1.1% लाभ में रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.1% की वृद्धि हुई। हांगकांग का हैंग सेंग 0.4% ऊपर आ गया। जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 0.3% की वृद्धि हुई। उधर बिकवाली के दबाव में दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.3% नीचे आकर बंद हुआ। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक एक सीमित दायरे में कारोबार होता नजर आ रहा था। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.4% ऊपर चल रहा था। वहीं जर्मनी का डैक्स और फ्रांस का CAC 40 दोनों सूचकांक 0.1% नीचे कारोबार कर रहे थे। Dr. Agrawal, when we began the news, we began with this stock market news, and we saw there was modest gains in the market today. And in fact, the whole day we saw quite a bit of volatility in the market. So, do you expect this volatility to continue in the coming days as well? Well, yes, there is likely to be volatility. One, as there is likely to be a challenge with respect to the third wave and the Delta variant affecting the infections across India. Also, what we do see is that when the markets reach a high level, there is profit booking by many investors, which does add on to the volatility that is already going on. Also, the earnings results will have some stock-specific action which is there. The macroeconomic indicators are also likely to see some reactions from the investors. The other thing that I want to ask you is that earlier, just a little while ago, you were before we went on the break, you were talking about the U.S. job data figures, which has come out, and some positive results on the from that side. So, do you think that's going to put some pressure on investors, especially the FIIs, which may take the money out of the Indian market and then decide to move to the U.S. markets? Well, the Fed has not indicated that it is likely to increase the interest rates, which can cause the FII movement towards the U.S. But if the Fed, then the FIIs would move towards the U.S. But at the same time, one needs to remember that as and when Fed would increase the interest rates, the other banks usually, and so as to restrict the change in the portfolios of the FIIs. If you look at the FII movements previously, but they have again become buyers in the Indian market, yes, which has also added a positive direction in the market. And before we move on, let me repeat the numbers that the listeners can call us on right now. The numbers are 23314444, 23717106, and 23717117. Do prefix the Delhi STD number 011 in front of these numbers. डॉक्टर यामिनी, यदि हम आज के कारोबार पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहें तो आज छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा है। मिड कैप इंडेक्स 1% से अधिक घाटे में रहा। इसे सामान्य मुनाफा वसूली समझें या बाजार जिस स्तर पर पहुंच गया है वहां के बाद एक करेक्शन की हम प्रक्रिया शुरू होता समझें? जी देखिए, अगर ओवरऑल मार्केट्स जब एक हाई पॉइंट पे पहुंचते हैं तो करेक्शंस प्रॉफिट बुकिंग के माध्यम से या ओवरऑल हायर वैल्यूएशंस की वजह से जरूर नजर आते हैं, क्योंकि मार्केट्स अभी ओवरऑल फंडामेंटली हायर वैल्यूएशंस पर हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा नजर आएगी, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी काफी रहेगी। बाजार में अभी यदि हम सेक्टर वाइज को देखना चाहें, बाजार जिस स्तर पर पहुंच गया है वहां पर यदि अगले दिवाली तक का यदि हम टाइम हॉरिजन लें तो उसमें कौन सा सेक्टर ऐसा लग रहा है कि मानसून की स्थितियों को देखते हुए, त्योहारों के अवसर को देखते हुए आगे निकल सकता है अन्यों की तुलना में? देखिए, एक तो FMCG सेक्टर है, एक ऑटोमोबाइल सेक्टर है। ये दोनों सेक्टर्स जो है इन सीजन के टाइम पे और दिवाली के टाइम के आसपास अच्छा करते हैं। We were talking about the IPOs that are, you mentioned the IPOs, that are in the pipeline right now. So, and earlier in our earlier program at Money Matters, you did say that we are going to continue seeing this bullish trend. So, do you think that the IPOs which are in the pipeline are going to be a big factor in the Indian markets, continuing with the bullish trend?
Well, the indication that the IPOs are being brought about does indicate that there is likely to be a higher amount of a capital expenditure being done in those sectors. Also, if you look at the metal sectors as well as chemical sectors and many other sectors, the capex has improved in these sectors after the Q1 results. And also what is indicated is that the industry does see an overall economic recovery. So the positive sentiment in the market is likely to continue till the time the recoveries are on their way. If there is a stall because of the challenges which may come from the Delta variant, then we can see a fall in the market. But otherwise, only corrections can be seen in the valuations and not the trend as such. And now our next listener is Anand Firke from Mumbai. Mr. Firke, welcome to the program. Please ask your question. नमस्कार, मार्केट मंत्रा के सभी टीम मेंबर्स को नमस्कार। नमस्कार, अपना सवाल पूछें। मुझे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ था शेयर इन्वेस्टमेंट पर और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी हुआ था। और इस फाइनेंशियल ईयर में मतलब 2021 में मुझे कुछ शॉर्ट टर्म गेन हुआ है और लॉन्ग टर्म गेन भी हुआ है। तो मेरा वो शॉर्ट टर्म लॉस इस साल के शॉर्ट टर्म लॉस के साथ सेट ऑफ कर सकता हूँ क्या? जी, यूजुअली कैरी फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड ऑफ अलाउड होता है, पर मुझे शॉर्ट टर्म लॉसेस की ज्यादा जानकारी नहीं है कि वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या नहीं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। पर कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं लॉसेस और उनको एडजस्ट किया जा सकता है। अनंत जी, हम आपको आग्रह करेंगे कि आप शनिवार का हमारा जो अंक हुआ होता है उसमें हमारे साथ वित्तीय क्षेत्र से जुड़े हुए और भी विशेषज्ञ हुआ करते हैं, कर क्षेत्र से संबंधित, और जो आपके प्रश्न हैं उनसे संबंधित विशेषज्ञ हमारे साथ हुआ करते हैं। उस दिन आप एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम में आए, आपको उचित जवाब मिल सकेगा। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी की। 9 करोड़ 50 लाख लाभार्थी किसान परिवारों को 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खाते में डाली गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कुछ ही दिनों में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है और ये लोगों के लिए तय करने का अवसर है कि वे 25 वर्षों में देश को कहां देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूरा होने तक भारत की स्थिति तय करने में किसानों की बड़ी भूमिका है। श्री मोदी ने कहा कि ये भारत की कृषि को एक दिशा देने का समय है जो नई चुनौतियों का सामना कर सकता है और नए अवसरों का लाभ उठा सकता है। मोदी ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है, चाहे वह खरीफ हो या रबी मौसम। इससे करीब 1,70,000 करोड़ रुपए धान के लिए और करीब 85,000 करोड़ रुपए गेहूं की फसल के लिए सीधे किसानों के खाते में पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में देश के दालों के उत्पादन में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनने के लिए राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम यानी NEMEOP शुरू किया गया है। इसके माध्यम से ऑयल इकोसिस्टम में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। इस बीच हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बागपत से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर कंवर सिंह। कंवर सिंह साहब, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं गवर्नमेंट बैंकों के बारे में पता करना चाहता था। PSU बैंक, इनका भविष्य क्या रहेगा अभी शॉर्ट टर्म में? डॉक्टर यामिनी, PSU बैंक्स जो है ओवरऑल अच्छी पोजीशन पे हैं और कुछ के डिसइन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं और डिसइन्वेस्टमेंट के तहत कुछ बैंक्स के ओवरऑल आप देखेंगे वहां पे सरकारी निवेश कम होगा, पर ओवरऑल स्थिति अच्छी है, कोई परेशानी की बात नहीं है। Let's move on to the commodities. Oil prices today fell more than 4%, extending last week's steep losses on the back of a rising US dollar and concerns that new coronavirus-related restrictions in Asia, especially in China, could slow a global recovery in fuel demand. In intraday trade, Brent crude was trading at around $67.90 per barrel. WTI crude prices were at $65.40 per barrel. And the next caller now online is Mr. Sunil from Thane. Sunil जी, कार्यक्रम में स्वागत है, सवाल पूछें। मेरा सवाल ये है कि टेलीकॉम सेक्टर जो है
जी, अभी मोनोपोली आने की संभावना है, 2 ही कंपनी रह जाएगी ऐसा लगता है, तो उससे हमारा इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स का क्या होगा? जी देखिए, जिस स्थिति में है उस स्थिति में डिओपोली की स्थिति होती है और 2 प्लेयर्स होते हैं मार्केट में तो कॉम्पिटिटिवनेस रहती है। और क्योंकि ट्राई रेगुलेशन होगी और ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेटेड रखा जाएगा, कंज्यूमर्स की स्थिति जो है अच्छी ही मानी जाएगी और कोई भी अगर कार्टेल बनता है तो उसे इमीडिएटली रोक दिया जाएगा। हमारे साथ नोएडा से हमारे साथ नियमित श्रोता हैं SPS जैन साहब। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछें। जैन साहब, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी, सवाल पूछें। हाँ, मैं सवाल नहीं है, अभी किसी सज्जन ने पूछा था शॉर्ट टर्म लॉसेज एंड शॉर्ट टर्म गेन्स। जी, तो मैं अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट टर्म गेन्स कैन बी सेट ऑफ against either short-term gains or long-term gains, but long-term gains can be set up only against long-term gains. इस जानकारी को हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। और अगली हम चलते हैं सर्राफा बाजार की ओर। घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी के मूल्यों में गिरावट हुई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त में आपूर्ति होने वाले सोने का मूल्य 400 रुपए घटा 46,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। सितंबर में आपूर्ति होने वाली चांदी 960 रुपए कम होकर 64,040 रुपए प्रति किलो रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य थोड़ा सा नरम पड़ा, $1,749.80 प्रति औंस के स्तर पर आया। चांदी भी कमजोर होकर $24 प्रति औंस पर आ गई। और मुंबई से हमारे साथ हैं श्रीकांत। श्रीकांत जी, बहुत कम समय है, संक्षिप्त में सवाल पूछें। मैडम, निफ्टी पुट के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। जी, निफ्टी इंडेक्स और ऑप्शन होता है जिसके तहत आप सेल करते हैं उस इंडेक्स को। उम्मीद है कि संक्षिप्त प्रश्न का संक्षिप्त जवाब आपकी पकड़ में आ गया होगा। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको डॉक्टर यामिनी धन्यवाद देते हुए पूछना चाहेंगे कि बाजार में तेल के दाम किस दिशा में जाते नजर आ रहे हैं शॉर्ट टर्म में, बहुत संक्षेप में। जी, शॉर्ट टर्म में गिर सकते हैं और बाद में बढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म में गिरने की आशा है। And Yamini, before we close the program, I need to ask you one more question. We just talked about the fact that gold prices are falling now. What are the factors that will guide the gold prices in the coming days and weeks, do you think? The Delta variant and the uncertainty with respect to lockdowns or anything affecting the economic recovery will lead to a low increase in the gold prices. Otherwise, the gold prices will reduce as and when the economic recovery is taking place. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से एक बार फिर धन्यवाद देते हुए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे और श्रोताओं को अंतिम यानी जो मुख्य हमारे सुर्खियां हुआ करती हैं वह बताना चाहेंगे। Domestic stocks log modest gains amid mixed global cues. Sensex closes above 54,400. Nifty settles above 16,250. And Brent crude prices stumble more than 4% amid concern about demand. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at 3 p.m. with Money Matters. Do join us then and later at 6:30 p.m. with Market Mantra. This is Anubha Rohatgi and Manoj Pathak saying bye-bye. Namaskar.